स्वामी विवेकानंद अपने राजयोग के व्याख्यान में हमें समझा रहे कि कैसे राजयोग या कोई भी भारतीय दर्शन जो है, योग दर्शन भी है, वो विज्ञान ही है, विज्ञान पर आधारित है, विज्ञान की पद्धति से ही आता है. And to explain that, he says, just like all our knowledge is based on experience and scientist goes by that experience, its recording, analysis, whatever is observed, and then finds out the laws of that universe, physical universe. Similarly, Sanatana Dharma or Indian religion, Hindu religion, has also adopted the method of observing, recording, analyzing, and from that finding out the laws. Now here the difference is we are finding the laws of not physical universe as it happens with physical sciences. We are trying to find out the laws of the deeper, more subtle universe, the mental universe, the psychic universe, and spiritual. So that's why these laws are also found out in the religion. Any religion or dharma which is worth its name will always have this type of methodology as Sanatana Dharma has followed, as our Yoga Darshana has followed. Since it was not done this way in some of the other religions, that's why religion and metaphysics or philosophy got bad name. And people think that, oh, these religions are only bundles of theories without any standard to judge them. And everybody will preach their own pet ideas, but there is no uniformity, which is very important. There is no objectivity. अपनी अपनी कल्पना के अनुसार हर कोई बात रखेगा, लेकिन यहाँ कहाँ वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है, ऐसा लोग मानते हैं आजकल. इसलिए तत्वज्ञान को या धर्म को एक अवैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिखी हुई बातें, बताई हुई बातें बताई जाती है, लेकिन ये सच नहीं है. आप देखेंगे जैसे स्वामी जी बता रहे, देयर इज अ बेसिस ऑफ यूनिवर्सल बिलीफ इन रिलीजन गवर्निंग ऑल द डिफरेंट थियरीज and varying ideas of different sects of different countries, and going by their basis we find that they also are based upon universal experiences. So these teachers all saw God, they all saw their own souls, they saw their future, they saw their eternity, and what they saw they preached. Only there is this difference that by most of these religions, especially in modern times, a peculiar claim is made, namely that these experiences are impossible at the present day. They were only possible with the few men who were the first founders of the religions that subsequently bore their names. मतलब सारे जो धर्म हैं वो ऐसे ही जो सूक्ष्म जगत है और हमारा स्थूल जगत है उसके नियमों पर, जो वैश्विक नियम है उन पर ही आधारित होते हैं. उसी का कोई भी देश हो, कोई भी युग हो, कोई भी व्यक्ति हो, उन्हें अनुभव आता है, आना चाहिए. ये सनातन है, ये वैश्विक है. और जो दुनिया भर के जो गुरु थे उन्होंने ईश्वर को देखा, उन्होंने अपनी आत्मा को देखा, उन्होंने भविष्य को देखा और उन्होंने अनंतता को देखा, और उन्होंने जो भी देखा उसका उन्होंने प्रचार किया. फर्क कहाँ आ गया कि जब इस हमारे आज के युग में हमने इस बातों को देखा तो कई बार ऐसा एक सबको बताया गया कि यह अनुभव कुछ लोगों को आए, उन्होंने उसको बताया, वो सारे इस धर्मों के निर्माता, उद्गाता थे. लेकिन अभी ऐसे अनुभव किसी को आना नहीं है, वो आ नहीं सकते. ये जो अनुभव थे वो बहुत ही एकमेवा द्वितीय थे. अभी उनका कोई आने की संभावना नहीं. और इसलिए आपको जो भी बताया इन गुरुओं ने, प्रेषितों ने, उसको मान लेना चाहिए. उनके अनुभव उनके साथ
सच थे, हमारे साथ वो नहीं हो सकते, हमारी वो पात्रता, क्षमता, संभाव्यता नहीं है. That is the difference, and that is the reason if people are told that you just believe because these people, some few chosen people, great people got the experience, so you also should believe in that. Today's generation will not agree to that. This is a generation of science, and therefore they feel that we should need something whereby I also can experience it. If it was experienced by one person some decades, some centuries, some millenniums back, then it is absolutely follows that that experience has been possible millions of times before and will be repeated eternally. बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे, वो कह रहे कि आज ये बताने की आवश्यकता है कि अगर सदियों के पहले भी ऐसे अनुभव लोगों का आए थे तो आज भी आएंगे. इसके पहले हजारों बार वो अनुभव आए थे, इसके बाद भी भविष्य में हजारों लाखों लोगों को लाखों बार वो अनुभव आएंगे. यही उसकी विशेषता है, यही तो विज्ञान है. विज्ञान, यूनिफॉर्मिटी इज द rigorous law of nature. What happened before can happen always. And therefore, the teachers of science of yoga declare that religion is not only based on experience of ancient times, but that no man can be religious until he has the same perception himself. Yoga is the science which teaches us how to get those perceptions. विज्ञान का ये प्रमुख तत्व है कि अगर किसी को अनुभव आया है तो दूसरे किसी को भी वो आना ही चाहिए, तभी तो वो विज्ञान है, तभी तो वो नियम है. और इसलिए योग विज्ञान के जो हमारे गुरु है वो क्या बताते हैं कि ये धर्म तभी आपका होगा जब आप उसका अनुभव लेंगे. अगर प्राचीन काल में अनुभव लिया था तो इसलिए वो धार्मिक थे क्योंकि उन्होंने अनुभव लिया. आज आपको अगर धार्मिक होना है तो आपको भी वैसे ही अनुभव लेने पड़ेंगे, और उसके लिए एक विज्ञान है इस अनुभवों का. उस विज्ञान को, कैसे अनुभव को लेना है, कैसे समझना है, कैसे परखना है, कैसी साधना करनी है, इसका जो विज्ञान है उसे हम कहते हैं योग. इतनी सुंदर सरल व्याख्या है. और इसलिए सभी व्यक्तियों को सत्य चाहिए, सभी को अपने जीवन जीने के लिए एक विशेष चीज चाहिए. आप उसको नकार नहीं सकते. एवरी पर्सन वांट्स ट्रूथ, ही वांट्स एक्सपीरियंस ट्रूथ बाय हिमसेल्फ और हिमसेल्फ, and he has grasped it, realized it, felt it within his heart or hearts. Then alone declare the Vedas, would all doubts vanish, all darkness be scattered, all crookedness will be straight. हर एक को वो सत्य चाहिए. सत्य जब तक नहीं है तब तक हम कभी भी सुखी नहीं रह सकते. और जब तक ये हमारे हृदय में, हृदयाकाश में जब तक ये सत्य उजागर नहीं होता, हम जब तक उसका अनुभव नहीं करते, तब तक कोई भी संभावना नहीं है संतोष होने की. वेद कहते हैं कि जब ऐसा होता है तो सारे संशय मिट जाते हैं, सारा अंधकार मिट जाता है, और सारी वक्रता भी जीवन से निकल जाती है. सारा कुछ सरल हो जाता है, जीवन सरल है, सत्य सरल है. और इस भावना से ही हमारे ऋषियों ने कहा, ये चिल्ड्रन ऑफ इमॉर्टैलिटी, इवन दोज हु लिव इन द हाईएस्ट स्फीयर, the way is found, that is a way out of all this darkness, and that is by perceiving him who is beyond all darkness. There is no other way. सुनो अमृत के पुत्रों, सुनो. और जो बहुत ऊपर चेतना के स्तर पे है, आप भी सुनो. हमें मिल गया है मार्ग क्या है, और अगर ये मार्ग से आप जाएंगे तो सारा अंधकार मिट जाएगा. इससे ही आप उसको, मतलब ईश्वर को जानेंगे जो सारे अंधकार के परे है. इसके अलावा दूसरा कोई भी चारा नहीं, कोई भी मार्ग नहीं. दिस इज द साइंस ऑफ राजयोगा. साइंस ऑफ राजयोगा proposes to put before humanity a practical and scientifically worked out method of reaching this truth. In the first place, every science must have its own method of investigation. ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राजयोग हमें सब बता रहा है. हर विज्ञान की अपनी एक पद्धति होती है, एक रिसर्च मेथोडोलॉजी होती है, संशोधन की एक प्रक्रिया होती है. और वैसे ही राजयोग की या भारतीय योग दर्शन की भी अपनी एक प्रक्रिया है. इसे स्वामी जी हमें समझा रहे हैं और हम उनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं. बहुत धन्यवाद.